I welcome all of you on platform of YourPedia Education, and I'm starting today the series of lectures and videos targeting Airport Authority of India exam, which is just declared. Last date is 14th January to fill the form, and YourPedia is asking its followers and the students, engineering students, science students, MBA graduates to fill this form. Yes, to fill this form, there's an opportunity. Out of 120, target is 90 plus score we have to hit. There's no negative marking because this exam was declared in 2018 also. Paper was very simple. I will discuss with you that thing also. And YourPedia is going to cover entire gamut of this exam. And 20% things are available to you free. This lecture is part of that. And others obviously at very nominal price. You people can seek the module of YourPedia, right? So now Airport Authority of India, this is the sort of exam in which questions will not be very difficult, but you need to know material to study is huge, and usme se hame we have to identify which is the most important part. Now I'm taking today there are 5 categories in which jobs have been declared, and this is one of the category, airport operations, in which there are number of jobs are more. So in airport operations, as per the advertisement given, this in 2018 advertisement I'm telling you, because the advertisement which has just come in 2020 December, that is actually not telling you about the syllabus. So we presume the syllabus is going to be same, and I'm starting from the topics which are actually difficult for students to get, and they are going to be part of your syllabus irrespective of what they think, but that is going to be part of that. So obviously this is general awareness, general English, quantitative aptitude, reasoning, and all these part are there, and then educational qualification, engineering and all that is also going to be there. So in this particular part, one very important topic is related to aviation related topics. These are the aviation related topics. You should know the industry in which you are going to join. You should know basic things about this particular sector, aviation sector, government policies, knowledge on aircraft manufacturing companies, domestic international airline operating in India. So we should know airlines, that is the basic thing we should have, and that is going to be there. Now in this basic, if I talk about all these topics which we are going to cover, so I have taken one topic from here, knowledge on aircraft manufacturing company. So which companies are manufacturing aircraft? If I ask you, आपने एयरलाइन के बारे में सुना है, कुछ एयरलाइंस के नाम बताओ, तो आप बोलेंगे सर एयरबस जो है वो बेसिकली यूरोपियन है, बोइंग जो है वो अमेरिकन है, एयरबस 3 नंबर से स्टार्ट होता है, बोइंग 7 से स्टार्ट होता है, सम सर्टेन थिंग्स, कॉमन ऑब्जर्वेशन. ओके, अभी हमने रफाल लिए था बेसिकली फाइटर जेट्स परचेज किए थे. मिग का नाम आपने सुना हुआ है, राइट? मिग का नाम सुना है आपने. साथ में आपने नाम सुना हुआ है जो हमारे पास बड़े कैरियर एयरक्राफ्ट होते हैं, रशियन सुखोई वगैरह, राइट? सुखोई का नाम सुना हुआ है. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडिया का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बनाता है. फिर आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम सुना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर एयरक्राफ्ट का. ये सारी कंपनीज, और हमने रशियन चाइनीज के नाम नहीं सुने हुए. अभी भी जो लार्ज कैरियर है, जो बेसिकली कंज्यूमर, इसमें जो कमर्शियल लार्ज कैरियर फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा हूं, कमर्शियल लार्ज कैरियर में अभी भी मेजॉरिटी जो मार्केट है कैप्चर किया हुआ है बोइंग और एयरबस ने. लेकिन रशिया और चाइना फास्ट कमिंग अप, रशिया एंड चाइना इज फास्ट कमिंग अप, पेसिंग अप के इसको रिप्लेस किया जा सके. सो अभी भी ये सारी की सारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ना, ये कुछ ही कंट्रीज ने पकड़ी हुई है. तो कुछ कंट्रीज है, इनफैक्ट अमेरिका 50% शेयर लेके बैठा हुआ, अकेला अमेरिका. सो आई विल डिस्कस विद यू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड उसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया आज, और वो टॉपिक मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं तुम्हारे साथ. द टॉपिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है एयरक्राफ्ट. सो जापानी, अगर तुम देखोगे फ्रेंच रफाल, डसाल्ट कंपनी का नाम है. रफाल जो हमने परचेज किया रिसेंटली, वो हमने फ्रांस से परचेज किया. सुखोई रशियन है, मिग रशियन है, एयरबस मैंने आपको बताया ये आपका यूरोपियन है, बोइंग अमेरिकन है. सो वी विल बेसिकली टॉक अबाउट ऑल दीज मैन्युफैक्चरर, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. और जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है. इसका इवेल्युएशन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे ये सारी की सारी चीज इवॉल्व हुई. इसका डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका क्रिएट करेंगे, इफ यू आर फिलिंग द गूगल फॉर्म, तो जैसे YourPedia करता है, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता है बच्चों का, और कुछ उसमें गाइडेंस उनको फ्री मिलता है. दैट इज व्हाट वी डू. सो जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाएंगे अभी हम लोग या क्रिएट करेंगे, उसमें वी विल प्रोवाइड यू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑल.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती क्या है? बेसिकली ये डिजाइन भी करती है, बिल्ड भी करती है, टेस्ट भी करती है, बेचती भी है, मेंटेन भी करती है एयरक्राफ्ट को, और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी बेचती है। और नॉट ओनली एयरक्राफ्ट, मिसाइल में भी है, रॉकेट में भी, सेफ स्पेस क्राफ्ट में भी है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हो तो वो डिजाइन से लेके मेंटेनेंस तक सारे के सारा डोमेन कवर करती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ, पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए भी ये कंपनीज ही पार्ट सप्लाई करती हैं, लेकिन कुछ और भी सप्लायर हैं, वेंडर्स हैं, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, जो इसको सप्लाई करते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में आई टेल यू कि क्यों और कंट्रीज में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई अभी तक बहुत ज्यादा। जैसे अभी भी हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट हम अपना क्रिएट नहीं कर पाए, तेजस वगैरह हमने बनाया है, लेकिन फाइटर जेट वगैरह हैं वो कोई बहुत बड़े हम कमर्शियल जैसे 200-300 लोगों वाला जहाज हमने नहीं बनाया। कारण ये टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और ये टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो अनलेस अनटिल यू मेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, तब तक आप इसका बेसिकली इंडस्ट्रीज ओपन नहीं कर सकते। इसलिए ये कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट बनाती भी है और पार्ट्स उसका मैन्युफैक्चर भी पार्ट करती है और उसका मेंटेनेंस भी करती है। दिस ऑल इज रिलेटेड टू दैट। दो तरीके से मैं इस इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकता हूं, एक सिविल एविएशन के लिए जो लोगों के बेसिकली कम्यूट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, कमर्शियल पर्पस, मिलिट्री एविएशन, फाइटर जेट, मिलिट्री, जैसे अगर मैं नाम लूं मिग प्लेन्स की बात करूं, फाइटर जेट प्लेन्स हैं, या रफाल की बात करूं, दे आर फाइटर प्लेन्स, एंड इवन सुखोई की बात करूं, वो आर्मी यूज करती है। सुखोई को भी इल्यूशन होता था पहले, IL सीरीज होती थी, वो भी आर्मी यूज करती है। तो दिस इज बेसिकली सिविल या आर्मी, ये हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जब हम इसरो एंड नासा की बात करते हैं तो वो एरोप्लेन में डील नहीं करता, वो स्पेस क्राफ्ट में डील करता है, राइट। तो इसरो, नासा वो अलग तरीके का एरोस्पेस है, और कमर्शियल एयरक्राफ्ट अलग तरीके का जहाज एंड सैटेलाइट में डिफरेंस है। मिसाइल, सैटेलाइट, जहाज, तीनों में कुछ टेक्नोलॉजीज कॉमन है, लेकिन तीनों अलग हैं। और जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें मिसाइल एंड सैटेलाइट से ज्यादा क्वेश्चन ना आके द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एरोप्लेन्स एंड दिस एयरलाइन इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ सी दिस टॉप 10 कंट्रीज जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर अभी हैं, टॉप 10 कंट्रीज वो ये है। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको बताया ना 49% शेयर लेके बैठा हुआ है, फॉलोड बाय देन ऑब्वियसली फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में मैं आपको भी डिस्कस करूंगा एयरबस वगैरह का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां पे है, आई विल डिस्कस दैट। उसके बाद चाइना इज फास्ट कैचिंग अप, चाइना इज फास्ट कैचिंग अप एंड वांट्स टू रिप्लेस द बिग कंट्रीज इन दिस मार्केट। यूनाइटेड किंगडम, यस, बिकॉज यूरोप को चलते, यूरोप, फ्रांस एंड स्पेन, ये सारे के, जर्मन जो है, ये सारे एयरबस से रिलेटेड डोमेन्स हैं इनकी। जर्मन है, रशिया का शेयर कम हो गया है जब से डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर। कनाडा है, जापान है, इंडिया 10th नंबर पे है, और इंडिया का शेयर अभी 1.3% है। सो अगर हम देखेंगे तो शेयर कुछ इस तरीके से है। और ये टॉप जो 10 कंट्रीज हैं ये $731 बिलियन की इंडस्ट्री और 87.2% ऑफ एंटायर इंडस्ट्री का कवर करती हैं। तो 87% शेयर, या मान लो 90% शेयर जो है इस इंडस्ट्री का, वो इन 10 कंट्रीज के पास ही है। इनफैक्ट अगर आप टॉप की 5 कंपनीज ले लें, कंट्रीज ले लें, 49%, 8, 15%, 65%, 70%, तो 75% ऑफ एंटायर इंडस्ट्री, 75% of entire airport industry, airline industry is basically with these countries only. बाकी ये भी insignificant countries हैं. You understand that? This is how you need to basically proceed forward. अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के नाम और कौन सी कंट्री से वो रिलेटेड है, दैट यू शुड नो। एयरबस जो है यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन यूनियन मींस कोई एक यूरोप की कंट्री नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो एयरबस उससे रिलेटेड है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, नॉर्थ ग्रुप, ग्रुमन, जीई एविएशन, जनरल इलेक्ट्रिकल भी इसके अंदर है, रेथियन टेक्नोलॉजीज, ये सारे यूएस के नाम है। यू सी दिस। एंड रेवेन्यू के बेस पे, तभी तो यूएस मैंने बताया ना 50% लेके बैठा हुआ है। तो रेवेन्यू के बेस पे मेरे को नहीं लगता तुम्हें 18 और 19 का रेवेन्यू बिलियन डॉलर्स में याद रखने की रिक्वायरमेंट है। यू डोंट नीड दैट। बट यस, अगर देखा जाए तो एयरबस सबसे ज्यादा है। अगर आपसे को पूछे सबसे बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री कंपनी कौन सी है, तो वो एयरबस है, यूरोपियन यूनियन की, लेकिन फॉलोड बाय अमेरिका। लेकिन अमेरिका में ओनली आपकी बोइंग नहीं है, लॉकहीड मार्टिन जो डिफेंस का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, डिफेंस का प्राइवेट सेक्टर में है वो, तो लॉकहीड मार्टिन, देन यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, जीई, जनरल इलेक्ट्रिकल, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो बोइंग से
ऊपर चला जाता है, तो सॉरी एयरबस से ऊपर चला जाता है। तो एयरबस सबसे सिंगल कंपनी बोला जाए तो एयरबस, लेकिन अगर सिंगल कंट्री बोला जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिंगल कंट्री है। उसके बाद ऑब्वियसली आप फ्रांस की बात करोगे, यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे, इनकी भी अपनी इंडिविजुअल कंपनीज हैं, जैसे सफरन जो है फ्रांस की है, अभी हमने जो परचेज किए थे रफाल जो है तो डसॉल्ट से परचेज किया था, वो भी आपकी फ्रेंच कंपनी है। तो दैट इंडिविजुअल कंपनीज आर आल्सो देयर। रोल्स रॉयस जो है यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड, एयरबस ने 2019 में बोइंग को रिप्लेस कर दिया लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी। तो अगर चार चॉइस दी जाए सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी कौन सी है, तो आंसर है यूरोपियन एयरबस। एयरबस कौन सी ग्रुप का है, यूरोप का है। और सेकंड कौन सा है, बोइंग है। तो पीछे आपने देखा कैसे कैसे हर इसका शेयर वहां पे बनता है। तो टॉप सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं, एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूटी, नॉर्थ ग्रुमन, ये इनका शेयर है, नाम याद रखने हैं। और कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो कंट्रीज ये हैं, ये भी आपने नाम याद रखने हैं। विच कंट्रीज आर बिग, विच कंपनीज आर बिग, कंट्रीज एंड कंपनीज, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। अब चलते हैं एयरबस के तरफ कि एयरबस ने बोइंग को रिप्लेस कर दिया लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी बाय रेवेन्यू। बोइंग का रेवेन्यू कितना है, एयरबस का रेवेन्यू कितना है, दैट इज नॉट आई थिंक इंपॉर्टेंट। यस, बट इज इंपॉर्टेंट इज के बोइंग का जो कमर्शियल एयरप्लेन का बिजनेस है वो बेसिकली वॉशिंगटन के साथ जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन इज द प्लेस जहां पे बोइंग का सारा कमर्शियल एरोप्लेन का बिजनेस कंसंट्रेटेड है। ओके, लेट्स गैदर सम मोर इंफॉर्मेशन। यूरोपियन यूनियन एरोस्पेस कंपनी कौन कौन सी कंपनीज को मिला के बनता है। एरोस्पेस कंपनीज यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी, एयरबस तो है ही, फिर मैंने बताया कि फ्रेंच सैफरन है, बीएई सिस्टम है, थेल्स है, डसॉल्ट फ्रेंच है। हमने जो परचेज किया रफाल जो एरोप्लेन, वो कहां से परचेज किया, डसॉल्ट से परचेज किया। ये सारी की सारी कंपनीज आर यूरोपियन यूनियन की कंपनीज हैं। फ्रेंच, स्पेन, जर्मन, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की सारी पार्ट। रशिया बेसिकली रशिया के अंदर ओबोरोप्रॉम एंड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। अभी जितने भी सुखोई वगैरह है ना, इल्यूशियन मैंने आपको बताया था, हम परचेज करते थे डिफेंस के बड़े बड़े जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज जिनमें इवन टैंक को भी आप ले जा सकते हो, वो हम रशिया से लेते थे। हम पहले रशिया से बहुत परचेज करते थे। तो आपका सुखोई हो गया, इल्यूशियन हो गया, ये सारे का सारा हम रशिया से लेते थे। अब उसका नाम हो गया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, यूएसी। तो यूएसी एक बेसिकली अम्ब्रेला टर्म दे दिया रशिया के जितने भी एरोप्लेन हैं, ऑल द सॉरी मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, collectively Vladimir Putin gave basically this direction when it was merged and it was made UAC, and UAC wants to compete with now Boeing and Airbus. So remember this name UAC, sorry not UAE, UAC and Oboroprom, this name also you need to remember. So they are the major global player industries, and Department of Defense and NASA are the two biggest consumer of these particular planes, aerospace technology and product, because NASA is, as I told you, ISRO of USA, and Department of Defense, they want planes, fighter planes and all. So these are the two basically consumers of the Boeing or other companies of America, which keeps on purchasing from them. So we should know the names of this. Okay, so what are major manufacturing companies we should know. If I talk about large commercial aircraft, then American based Boeing and European Union based Airbus group, these are the main two commercially aircraft group of the companies. मतलब commercial aircraft में यही लोग अभी डील कर रहे हैं. China and Russia is catching up. So world की major large passenger aircraft manufacturers are Airbus and Boeing. That is what we should know. Boeing starts with 7 series, Airbus starts with A series or 300 series. You know, if you see some Boeing aeroplane or Airbus, you'll find these numbers there, Boeing 7 or something. Maybe Bond के नाम से इन्होंने रखा है अमेरिकन ने, you know, James Bond 7, I think 7007. I don't know what is the reason for that, but Boeing starts with 7. ओके, नाउ लार्ज कमर्शियल जेट में तो यही दो कंपनीज हैं, लेकिन यू नो अदर स्मॉल कंपनीज, स्मॉल एरोप्लेन में देयर आर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज आल्सो. If I talk about United Technology Corporation, General Electrical, they are also American companies. So they are also manufacturing some part of these industries. You know, Bombardier, which is in Canada, and Embraer, which is in Brazil,
they are also aircraft manufacturer and they are the local regional player. So name you should know. Bombardier Canada based hai, Embraer Brazilian based hai, and now Comac in China and Mitsubishi in Japan, UAC in Russia. These names you need to remember. As I told you, know, he might give you exam question that General Electrical everybody knows is American. United Technologies Corporation, American. UAC, Russian. Comac, Chinese. Mitsubishi, Japanese. So these names I think are important, which we should remember. But large jet space में Airbus and Boeing. Okay. Now, Lockheed Martin and United Technologies are giving the competition. Lockheed Martin is the largest defense aerospace supplier in the world, followed by I think Boeing और Airbus में से कोई एक है, वो अभी हम देखते हैं. More than half of the Boeing and 3/4 of Airbus revenue comes from commercial business only. So if somebody asks you Boeing and Airbus का business आता कहाँ से है? Commercial plane से आता है. Commercial plane means passenger plane, बड़े-बड़े passenger plane. When you go to airport and you take the flight, then this is basically Airbus or Boeing. Lockheed Martin is into the defense, you know. Dassault is into the defense, from where we purchase the fighter planes, small planes. That is how they have created the market. Let me talk something about now Chinese aircraft manufacturer. As I told you, China is fast catching up. Comac is the name of that company, Chinese company, Comac, which is fast catching up and coming in this particular domain. And Comac along with Russian UAC. So Comac along with the Russian UAC, they want to create niche for them. They want to create space for them and give the competition to Boeing and Airbus. As of now, large commercial space में कौन companies हैं? Boeing and Airbus. Who wants to give competition to them? Chinese Comac and Russian UAC. These are the companies which want to give competition to them in this particular space. Okay. Now let's talk about the Airbus. What question is going to ask you from Airbus? Other than obviously now Airbus has replaced the largest. This has become the largest now. It replaced Boeing. And you know, it starts with the A alphabet and 300 series. Where is the headquarter of Airbus? It is in basically France, Toulouse. I don't know how to spell it, pronounce it, sorry. Toulouse Blagnac Airport, France. ये याद रखना फ्रांस में है इसका. That is a headquarter of Airbus and largest ये basically company है world की. Boeing is second largest is Boeing and American है ये. बोइंग 7 सीरीज से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया. एंड सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वर्ल्ड का, फॉलोड बाय लॉकहीड मार्टिन. लॉकहीड मार्टिन भी अमेरिकन है. तो डिफेंस सप्लायर सेकंड नंबर पे कौन सा है? बोइंग है. अदरवाइज भी कमर्शियल में सेकंड कौन है? बोइंग है. और फर्स्ट कौन है? एयरबस है. एयरबस किसका है? यूरोपियन यूनियन का है. और बोइंग किसका है? बोइंग अमेरिकन ही है. और बोइंग सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस में है. और इसका ऑफिस कहाँ है? शिकागो इलिनॉइस में है. एयरबस का ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर. मैंने आपको प्लेस बताया था कहाँ है. सी अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट दैट हाउ मच यू हैव टू रीड. I don't want to give you 100 pages. I want to give you 10 pages जिसमें से क्वेश्चन आ जाए. That's it. So make your preparation very very strategic. Make it I'll say do smart work. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, कि मेरे को इतना पढ़ना है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए. तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस मार के हम लोग इतना कंसाइज सा मटेरियल अपने लिए बनाएं, सो दैट विद लेस एफर्ट आई कुड स्कोर 90 प्लस. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट. लेट्स टॉक अबाउट लॉकहीड मार्टिन नाउ. Lockheed Martin is American company and largest defense arms and defense technology seller in the world, you know. And where is the head office of Lockheed Martin? It is in Maryland, near Maryland in Washington, you know, Washington DC area. It is one of the largest companies in aerospace, military, sports, security, technologies. World's largest defense contractor based upon revenue. So aerospace, defense aerospace में which company? Lockheed Martin. Where is it? Washington. You know, Washington State University में if you do your masters, I can't help it because I keep on pushing you from masters and doctorate, so I can't help it. Sorry for that. So if you do your masters or doctorate from Washington State University, then Lockheed Martin comes there for basically recruitment, you know. And there was one of my student who worked in Lockheed Martin and then I think he left it. Varun is there, he worked there and he was telling me it's a very good company to work. Anyhow, let's go back, not deviate. Lockheed Martin, this is the Lockheed Martin office there. And where is the headquarter? As I told you, Washington DC.
मैरीलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और भी इसके अलग अलग जगह पे, इसके कोलोराडो वगैरह में, टेक्सास में इसके ऑफिसेज वगैरह और एक्टिविटीज हैं, बट यस हेड ऑफिस इज इन योर वॉशिंगटन। सो एरोस्पेस के साथ रिलेटेड टर्म आपकी वॉशिंगटन है। ओके, नाउ सुखोई रशियन, रशियन कंपनी है सुखोई, अब इसको मर्ज कर दिया गया है, बट नाउ दिस इज द बेसिकली इट वाज इन ओक्रुग, मॉस्को के पास इसका हेडक्वार्टर था, सिविलियन एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों ये बनाता था। फ्रॉम 2006 रशियन गवर्नमेंट मर्ज सुखोई with Mikoyan, Ilyushin, Irkut, Tupolev, Yakolev, and a new company has come, thank God, UAC. It is not tongue twisting, we can say UAC, United Aircraft Corporation. Otherwise कैसे बोलोगे यार इसको? Ilyushin, Irkut, Tupolev, Yakovlev, looking like tongue twisting for us, right? So better is, remember now, all Russian, Vladimir Putin, thanks to him, he merged all the companies, made it UAC. अभी कौन कंपटीशन दे रहा है? बोइंग को और एयरबस को कौन कंपटीशन देगा? भाई कंपटीशन देगा रशिया और चाइना, ये मिलकर कंपटीशन देंगे, और मेरे को लगता है हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। तुम जा रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी में तो थोड़ा देना कंपटीशन, एंड डू इट, एंड सो दैट वी आल्सो बिकम द मेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। Okay, this is what Sukhoi is all about, 1939. Any idea when World War One, World War II कब स्टार्ट हुआ था? Any idea about that? World War II, 1939, important year. 1955, 1956, 1998, 2010, 2014. This is how it is basically evolving. Is this important slide? No, it is only interesting, not important. So only for your interest. MiG. But this one is not interesting only, this is important also. MiG is also Mikoyan का छोटा नाम है, और MiG was notorious, MiG-21 के क्रैश होते रहते थे क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता था, बहुत से हमारे पायलट्स मरे थे, और उसके बाद MiG को यूज नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर परचेजिंग रफाल एंड ऑल दिस फ्रॉम फ्रेंच कंपनीज एंड ऑल। सो MiG इज रशियन कंपनी, मिकोयाम, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है मॉस्को के पास ही बेगोवोव में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, और ये अब यूएसी में मर्ज कर दिया। मिकोयान इज आल्सो मर्ज्ड इन this UAC, as I was telling you, this is also merged there. All these were created during Cold War era. You know what is Cold War era? 1945, Second World War, when it was over, Second World War, Hiroshima, Nagasaki. Then US and USSR emerged two main powers. USA, यूरोप उसकी तरफ, यूएसएसआर बाकी कंट्रीज इस तरफ, और आपस में इनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। डायरेक्ट नहीं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मींस डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को काटने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसी के टाइम पे ये सारे के सारी कंपनीज क्रिएट हुई थी। ये है मिग की जर्नी। अगेन मिग 1940, सो देयर इज नॉट कोइंसिडेंस कि 1939-40 में क्यों क्रिएट हो रही हैं। पर्ल हार्बर, एनी आइडिया पर्ल हार्बर विच ईयर? लेट मी आस्क यू। एक मूवी है यार पर्ल हार्बर, पूरी की पूरी जापानीज एयरक्राफ्ट बम्बार्डिंग द अमेरिका एंड मेड द जाइंट स्लीपिंग जाइंट रेज एंड पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर। सो ये 1940 पे मिग रशिया ने क्रिएट किया था उस टाइम पे। कोई रीजन है उसका, हिस्ट्री देखोगे इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग देयर। एनीहाउ, अगेन इंटरेस्टिंग फॉर यू, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज हाउ इट इज गोइंग फॉरवर्ड। अब चलते हैं डसाल्ट रफाल। रफाल का जब जहाज आया था, इंडिया वाज फीलिंग वेरी वेरी प्राउड, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर उतरा ये, एंड वी वर इन लिटरली टीयर्स टू सी, ओह इंडिया हैज कम टू वन स्टेज वेयर वी आर नाउ परचेजिंग रफाल फ्रॉम फ्रेंच, वी आर सो प्राउड। आई वंडर जिस दिन हम बना लेंगे तो उस दिन तो रोना ही बंद नहीं करेंगे यार, आई डोंट नो, वी विल बिकम सो इमोशनल। सो अभी तो खरीद के इमोशनल हो रहे हैं। वी परचेज्ड इट फ्रॉम फ्रांस, डसाल्ट रफाल। रफाल का मीनिंग is basically burst of fire, gust of wind, because fire निकलती रहती है उसके, अगर तुम उसको फ्लाई करते हो देखोगे, that is how the name has come up, but it's not important. Dassault Aviation से हमने लिया है, that is important, एंड बहुत सी कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया को ये बेचता है। यहां से सर क्या क्वेश्चन आ सकता है? यही क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब ये जो आपका रफाल है कौन सी कंपनी बनाती है, और ये कंपनी कौन सी है? डसाल्ट बनाती है, फ्रेंच कंपनी है। ओके, आई थिंक आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई एम वेरी श्योर यू एंजॉयड दिस क्लास, एंड बिलीव मी एयरपोर्ट अथॉरिटी की जॉब्स बहुत अच्छी हैं। जस्ट फाइट मारो, इजी एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क, work with the YourPedia. Let's start, push it hard. The way we have analyzed all other previous exams, we are going to analyze Airport Authority of India in detail. All my mentors are going to start their respective domain very soon. So let's start with this now, and let's push it hard. Thank you. Enjoy the lectures.